ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हुतो सो न कियो परियो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। करणो हुतो सो न कियो परियो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुग हो जुग अटल सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाईमान कोई बैठे गुरु सवारी सत संगी जनों वडभागी हो। सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत सदका अमृत वेले दे दीवाना अंदर जुड़ बैठ संगती रूप अंदर नितनेम बाणी दा जाप कीता है। सतगुरु बख्शिश रहमत करन इसे तरह सतगुरां दे चरनां दे नाल दिनों दिन वधेरे प्यार पै जाए। जीवन दियां कुछ घड़ियां नूं आपां रल मिल के सफलियां कर लईए। नौवें गुरु नानक तन तन गुरु तेग बहादुर साहिब जी तिन्हां दे 400 साला आगमन पुरब दियां खुशियां नूं समर्पित सतगुरु दी पावन बाणी वारां ते वधीक दे सलोकां विचों साहिब जी दे दर्शन दीदार करन दा यतन कर रहे। कल साहिब जी इस 84 दे सरदार मनुख नूं समझा रहे सन कि जेड़े लोग सुखां दे समय तेरे कोल आके बैठ जांदे ने तू बस उन्हां नूं ही सच्चे मित्र मन लैने। पर उस समय अजमा के देख लई जिस वक्त तेरे ऊपर कोई दुख दी घड़ी आ गई कोई विपता दा समा आ गया उस वक्त केड़ा मित्र तेरे नाल लगदा कि केड़ा तेरा काम अगे हो के सवारेगा। ये फैसला तू आप कर लई। मैं निराशता वल तेनू लैके नहीं जाना चाहता। जे कोई सहाई ना बनिया ते फिर साहब कह लगे अंत गुरु दी शरण अंदर आ जाई। ए दर कदी भी धक्का नहीं मारदा ए ते आवाजा मारदा है कि इस घर वल आउण वाले सजना इस घर दा सुभाव ही ऐसा जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ए बिरद सुआमी संदा ते इन्हां बचना अंदर ये किते नहीं कहा कि बचपन अंदर आई, जवानी अंदर आई, बुढ़ापे अंदर आई, किते भी जीवन अंदर कोई ठोकर लग गई
ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ 35 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 36 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਸਹਿਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਬਸ ਮੈਂ ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਕੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾ ਕੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਨੂੰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਕੌਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਅੰਦਰ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਜਪ ਨੀਤ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ? ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਦੀ ਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾ, ਦਿਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵੋ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਜਪ ਨੀਤ,
काम बिसासा देह का बिलम न करहो मीत। सैम कहन लगे पता नहीं केड़े वक्त सवास निकल जान। सतगुरु दी पावन बाणी कहंदी हम आदमी हां एकदमी। ये नहीं क्या कि जवानी अंदर ही जावांगे, ये नहीं क्या कि बुढ़ापे अंदर जावांगे। हम आदमी हाँ एकदमी। मोहलत मौत न जाना नानक बिनवै तिसै सरे वो। जाके जी प्राणा उसनू चेते कर ले क्योंकि नह बारिक न जो बने। बचपन अंदर भी जवानी अंदर भी जा सकते। न बारिक ने जो बने न बिरती कश बंद। ओ बेरा ना बूझिए जो आए परे जम फंद। ते की साहिब जी जेड़े ज्ञान दियां गल्लां करदे ने ओ जगत अंदर बैठे रहणगे। साहिब कह लगे ने ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख रह नहीं ए ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई मूड़ तां लपटाए। मूर्ख बंदा नहीं समझदा नहीं ते बहुतात जेड़े गुरु दे कोल आके गुरु दे बचनां नूं मन लैंदे ने उन्हां नूं समझ पै जांदी है कि ये 3 पड़ावां तो बाद अंत हो जाना है। वैसे ये रब दी फसल है, पता नहीं वो केड़े वक्त कट ले। जिवें कोई किसान खेत दे अंदर बीजी कोई फसल नूं किसी समय भी कट सकदा है। जिस वक्त आपां आ पशुआं वास्ते घाह चारा कट्टण वालियां वल देखदे हां, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਾ ਘਾਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, क्योंकि जिस वक्त घाह चारा पक जाएगा ते पशुआं ने उसनूं खाना कोई नहीं, वो ज्यादातर कच्चा ही कट्टिया जाता है। उस तो बाद जे किते आपां मंडी अंदर पई कोई सब्जी वल देखदे हां, ना ये कच्ची है ते ना ये पक्की है, ये डडरी है। बहुती कच्ची जड़ी बिल्कुल कोमल जी होवेगी उसनूं भी कदी खेत दे विचों ओ किसान सब्जी नूं तोड़ेगा नहीं। जिस वक्त वो डडरी हो जाती ना वो कच्ची है ते ना बहुती पक्की है, ते उस तो बाद फिर जिहड़ी फसल पक जाती है, पकण तो बाद फिर वो कट्टी जाती है। सैम कहन लगे हरी ना हिन डडरी पक्की वड्डण हार, ले ले दात पहुतिया लावे कर तैयार। जा हुक्म हुआ किरसान दा तां लुण मिणिया खितार। जिस दिन किसान दा हुक्म हो जाता है, भावें फसल कच्ची होवे भावें फसल डडरी होवे भावें पक्की होवे, उस फसल ने कटिया ही जाना है। ए इंसान कली फसल की गल नहीं चल रही, उधरों ते उदाहरणा दे के समझाया तैनू जा रहा है कि जगत दे अंदर तू बैठे नहीं रहना। बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान। गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन पढ़ रहे हैं ते इन्हां ने सिर्फ इस नूं 3 अवस्थावां दे अंदर लिया है। पर जदों गुरु नानक साहब जी दे आपां होर बोल पावन बाणी दे विचों पढ़दे आ ते गुरु नानक साहब जी ने एक थां ते इस नूं 4 अवस्थावां अंदर बयान कीता है ते एक थां ते इस दियां 10 अवस्थावां बना लईआं। गल ते समझाउण दी है कि किसे तरीके इस नूं समझ पै जाए। एक थां ते साहब कहन लगे जदों 10 अवस्थावां दा जिक्र कीता, कहन लगे पहले प्यार लगा थण दुध। जदों ये पैदा होया, पैदा हुंदियां सार इसदा मां दे उस दुध दे नाल प्यार पै गया। पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध। जदों दूजी अवस्था आई ते इस नूं मां बाप दी पहचान हो गई। जदों इस नूं कोई होर बाहरों आके उस बचपन दे अंदर अपनी गोद अंदर चुक ले ते ये बच्चा उस वक्त रोना शुरू कर देंदा है, क्योंकि हत्थां दी पहचान है कि ये मेरे मां बाप नहीं। सैम कहन लगे पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब। जदों तीजी अवस्था आई फिर अपने भरावां दी पहचान हो गई, भाभी दी पहचान, इस तरह कह लीए कि अपने परिवार दी पहचान हो गई। चौथे प्यार उपन्नी खेड़,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ तक ही सीमित है, पंजवें खाण पीण की धात, छेवें काम ना पुछे जात। जब वो छेवीं अवस्था इस उपर आई ते फिर ये हुण कामी बनता जाता है। इस नूं समझ पै गई कि विकार किवें कमाउणे हन। छेवें काम ना पुछे जात, सतवें सांझ किया घरवास। जदों सतवीं अवस्था ते चला गया, इस तरह कह लीए 70 सालां दा हो गया, घर दे अंदर इसने सब कुछ अपने वल्लों यतन कर लिया। जो कुछ लियाउणा सी बनाउणा सी वो सारा कुछ ही इसने इकट्ठा कर लिया। हुण इस तो बाद ते अगे बच्चे देखणगे। इसे नूं एक विद्वान कहंदा ए मन खोतिया आवे हेठ खलोतिया, आवा तेरा मुकना नहीं ते खैड़ा तेरा छुटना नहीं। इसे तरह जीवन निकल गया। साहब कह लगे कर कर थाके वड्डे वडेरे लोग कहते हैं बस आ कारज पूरा करके वेले हो जाना है, फिर बंदगी करांगे, बस आ एक कारज रह गया, बच्चे ब्याह के वेले हो जाना है, उस तो बाद फिर बंदगी करांगे। साहब कह लगे कर कर थाके वड्डे वडेरे किन्ही ना किए काज माया पूरे। ए माया दे कारज कोई नहीं मुकने जिन्ना चिर मर्जी लगा रही। अखीरले सवासां ते पिया होया भी ए इंसान हॉस्पिटल दे अंदर बच्चियां नूं काम दसी जांदा है। साहब कहन लगे छेवें काम ना पुछे जात, सतवें सांझ किया घरवास, अठवें क्रोध हुआ तननाश। जदों अठवीं अवस्था आई ते क्रोध दे अंदर आ गया, क्योंकि बच्चे हुण कहना नहीं मनदे, सलाह कोई नहीं लेंदे, अपने आप वो सारे काम करी जांदे ने। ते ए बैठा होया क्रोध दे अंदर घर दे विच ना किसे दे नाल कोई गल करन जोगा, बस क्रोध दे अंदर ही लाल पीला होया। कुछ समय दे बाद फिर अपने आप ये चुप करके बैठ जांदा है, फिर कोई ना कोई गल चल पई, सुनदा कोई नहीं। अठवें क्रोध हुआ तननाश, नामे धौले उपेसा। 90 दी आरजा अंदर जाके बिल्कुल केस जेड़े सन वो चिट्टे हो गए। नामे धौले उपेसा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। 10वीं अवस्था दे अंदर जाके साहब कह लगे जेड़ा इन्ना सोहना तन मिलिया सी सारा स्वा हो गया। इस नूं अगे फिर गुरु नानक साहब होर एक श्लोक दे अंदर ए मांझ की वार दे अंदर साहब जी दे पावन अंग 137 उपर मांझ की वार आरंभ हुंदी है ते पहली पौड़ी दे नाल ही ए 3 श्लोक आउंदे ने। ए दूसरा अते तीसरा श्लोक मैं साझा कर रहा। तीसरे अंदर साहब ने फिर क्या कहन लगे 10 बाल तन 20 रवण। हुण 10 नूं गिण दिता। जिक्र कर रहा गुरु तेग बहादुर साहब तां इन्हां नूं 3 अवस्थावां अंदर लै रहे ने ते गुरु नानक साहब ने 10 अवस्थावां दा जिक्र कर दिता कि किसे तरीके ही इस मनुख नूं समझ आ जाए। साहब कहन लगे 10 बाल तन 20 रवण, 30 का सुंदर कहावे, 40 पुर हुए, 85 पग खिसै। कोई सारे अर्थ सेम होने खन। 85 पग खिसै, 60 के बुढ़ेपा आवे। 60 दा जदों हो जांदा ते बुढ़ेपा आ जांदा है ते समय दी सरकार भी इस नूं समय वेला कर दिंदी है। ते सतगुरु भी 60 ते जाके जिक्र कर रहे ने कि 60 ते जाके ये बुढ़ेपे अंदर चला गया। 60 के बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे, 90 का से जासनी मूल ना जाने अप बल। ढंडोले में ढूंढम डिठ में नानक, जग धुएं का तवल हर। बस ये जिवें धुआं उड़ जाता है उसे तरह आया गया मोया नाओ, निशानियां मिट गईयां। किन्नियां क पीढ़ियां आपां अपने वड्डे वडेरियां नूं याद रखदे आ, 2 ਜਾਂ 3 पीढ़ियां चेते रह जाणगियां। दादे दा नाम पड़दादे दा नाम चेते रह जाएगा। उस तो बाद कोई पता नहीं लगता इस जगत दे अंदर कौन कौन आया। बड़े आए इथों बड़े चले गए। ताई शायद साहब दी पावन बाणी अंदर होर भी इस तरह का बड़ा जिक्र आउंदा। खैर मैं उस पासे वल ना जावां। गुरु नानक साहब जी ने 4 पड़ा इस दे होर एक थां ते बयान कीते। बचन आपां विचारने बाल
जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। ते उथे गुरु नानक साहब जी ने चार पड़ावां दा जिक्र कीता है। पहले साहब जी ने जो बचन किया, पहले पैरे रैण के वणजारिया मित्रा हुक्म भया गुरबास। तीन अवस्थावां ते आई जिहड़ियां गुरु तेग बहादुर साहब बयान कर रहे ने। ते जिहड़ी पहली अवस्था चौथी कह लीए चाहे पहली कह लीए, ये मां दे गर्भ दी लै लई गुरु नानक साहब जी ने। पहले पैरे रैण के वणजारिया मित्रा हुक्म भया गुरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लागा। ना मरजाद आया कल भीतर बौड़ जासी नांगा। साहब कह लगे मां दे गर्भ अंदर पुट्ठा सी ते उस वक्त ये पुकारा करदा सी, इथों कढ लै मैं तैनू चेते करदा रहांगा, पर जन्म होण दी देर है। साहब कह लगे नंगा ही जगत दे अंदर आया ते साहब दे बचनां नूं ना मनदा होया, इज्जत पत दा कपड़ा इथों ना लैंदा होया फिर नंगा ही वापस मुड़ जांदा है। जिसनों साहब ने एक थां ते होर किया, कह लगे सब इकट्ठे हुए आया। आउणा सारियां दा इक्को जिहा माता दे गर्भ राहीं जन्म हुंदा है। सब इकट्ठे हुए आया, घर जासण वाट वटाया, पर कह लगे जाना सब दा इक्को जिहा नहीं बनदा। सब इकट्ठे हुए आया, कर जासण वाट वटाया। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। गुरमुख इथों लाहा लै गए ते मनमुख जिवें आए नंगे ही चले गए। ये पहली अवस्था गुरु नानक साहब ने बयान की। खैर थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा, शब्द जेड़े खन वो बड़े लंबे खन। अगे फिर दूसरी अवस्था साहब ने बयान की। दूजे पैर रैण के वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। जदों जन्म होया थोड़ा जिहा वड्डा 5-7 साल दा कह लीए, जां भगत कबीर साहब जी ते 12 साल तक ही बचपन गिनदे ने। साहब दे जेड़े बचन मैं सांझे कर रहा, दूजे पैर रैण के वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। हथों हथ नचाइए वणजारिया मित्रा ज्यों जसदा करकान। साहब कहन लगे ये बच्चा बस इन्हां खेडां दे अंदर ही मस्त हो गया, खिडौणियां दे नाल ही मस्त हो गया। 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कछ तप न कियो, 30 बरस कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद भयो। मेरी मेरी करते साहब कहन लगे जन्म गयो, इसे तरह ही तेरे बाकी भी पड़ा चले जाने ने जी गुरु दे नाल ना जुड़िया। हुण तीसरे पड़ा दी जदों साहब ने गल कीती, कह लगे तीजे पैर रैण के वणजारिया मित्रा धन जोबन सो चित। जदों तीजा पड़ा आया चढ़दी जवानी दे अंदर ते उदों ये जिथों भी कितों किसे नूं ठग के लुट के धन इकट्ठा हो सकदा है, ये लुट लुट के घर दे अंदर लई आउंदा है। हाँ लियाउंदे ते सारे ही खन गुरमुख भी लैके आउंदे ने, पर गुरमुख नाल नाल ये भी चेता रखते ने कि जगत अंदर सदैव टिके नहीं रहना, इथों चले जाना है। वो पाप नहीं करते कि जिसका लेखा सिर दे ऊपर खड़ा हो जाए। बहु परपंच कर पर तन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजै, क्योंकि अंत नबेरा परिवार तो नहीं, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै। लेखा तैनू देना पैना है। गुरु तेग बहादुर साहब भी इसनों पावन बाणी अंदर एक थां ते बयान करते ने, कहन लगे धन जोबन प्रभता के मद में ऐनस रहे दीवाना। जिमें एक नशे अंदर मस्त होए नूं कोई पता नहीं लगता मेरा घर बार किथे है। उसनों कोई गल पूछी जाए अगों कोई होर ही बयान करी जाता है। जोबन, जोबन का अर्थ है जवानी, जवानी दे पड़ा की गल कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब दे बोल सांझे कर रहे हैं। जोबन धन जिस दे कोल बहुता धन हो जाए ते गुरु चेते नहीं, जे गुरु चेते है तो बहुता धन भी प्रवान है। बाबा मक्खण शाह लुबाणा पिछले दिनी विचार ऐसा, उस दे जहाज चलते ने, शायद साडे विचों किसी दे भी जहाज ना चलते होण, उस दे जहाज चलते ने फिर भी गुरु नूं चेते करी जांदा है। जेड़े टुट गए जोबन धन प्रभता, किसी चंगी नौकरी दा चंगे अहुदे दा मान करके बैठ जाना,
कि हुण मेरे बराबर कोई भी नहीं। जिथे भी हंकार पैदा हो गया, जो बन तन प्रभ ताकै मद में ऐनस रहे दीवाना। दिन रात हंकार दे अंदर मस्त हो गया, तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा। धन जोबन सो चित हर का नाम न चेती वणजारिया मित्रा। बद्दा छुटै जित सहम कह लगे हुण विकारां दे अंदर बज गया, इसे धन पसारे अंदर बज गया। जे गुरु कोल किते आ जांदा ते गुरु ने बचा लेना सी, नहीं ते फिर चौथा पड़ा जिहड़ा वो भी तैयार। चौथे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा। लावी आया खेत, जिवें पहला विचारिया कि फसल पक जाए ते उस तो बाद आस नहीं कीती जा सकती, फिर कट्टी जानी है। इसे तरह सहम कह लगे फिर लावे आ जाते ने। धर्मराज वालों हुक्म हो जाता है, जमदूतां वालों या रब दा हुक्म हो जाता है, ते फिर इस जीव नूं जाना ही पैंदा है। चौथे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा। लावी आया खेत, जां जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा। किसे ना मिलिया भेत, हुण अंदरली खेड़ किस पासे वल चली गई, किसे नूं कोई पता नहीं। ते मेरे वर्गा कर्म कांडी जिहड़ा है वो अपने वड्डे वडेरियां दे सराध करदा फिरदा है कि अज गुरु घर दे अंदर चले जाइए, साडे वड्डे वडेरे दा सराध। ते सहम कहन लगे पता ही नहीं अंदरली खेड़ चली किथे गई। आ तेरा राशन पानी जिहड़ा किथे पहुंचाइए, जदों पता ही कोई नहीं। एक दज्ज है, एक दब्बी है, एक ना कुत्ते खाहे, एक पानी विच उसटिया, एक पी फिर हसन पाहे। नानक एव ना जापई, किथे जाए समाहे। सहम कह लगे सानू नहीं पता तेरा वड्डा वडेरा किथे चला गया, बस जिहो जे कर्म कीते ओहो जिही उसनू अगला जन्म मिल गया। अगले जन्म दे अंदर बैठा सब कुछ खाई जाएगा, तैनू भेजन दी कोई लोड़ नहीं। जे कर्म सुचजे कर लेगा ते तेरा जन्म सफला हो सकता है। हाँ, किसी लोड़वंद नू किते लोड़ है, उस दी लोड़ पूरी कर दे ता तेरा सफला होना है। ते जे लोड़ पूरी नहीं करनी, जेड़ा पहले ही रजिया होया है, जे ओनू ही रजाई जाएगा ते साहब कह लगे कोई थाई नहीं पैना। अकली साहिब सेविया, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान। साहब कह लगे दान भी करने ते अकल तो कम लेके कर, नहीं ते कीता होया तेरा दान भी बेकार चला जाएगा। साहब जी यही गल अज 3 पड़ावां रही सानू समझा रहे ने कि बाल, जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। इसनू भाई गुरदास जी ने भी बयान किया। सुध न होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विहावे। पर जोबन परमाइए, पर तन धन पर निंद लुभावे। बिरद हुआ जंजाल विच महाजाल परवार पहावे। बलहीना मतहीन हुए 972 बरड़ावे। अन्ना बोला पिंगला तन थक्का मन दाद दस्तावे। साध संगत गुर शब्द बिन 184 जोन पवावे। साहब कह लगे अवसर चुका हाथ ना आवे, समा निकल गया। पर जे गुरु का सिद्धांत कोल होए ते इत्थे 3 अवस्थावां जिहड़ियां ने वो सफल होईयां भी नजर आउंदियां ने। साहिबजादियां दी किन्नी किते आरजा सी, वो नीहां दे अंदर बचपन दे विच ही हन। विद्वान कहंदे 7 ਅਤੇ 9 साल दी आरजा है। वो बचपन नूं भी सफला कर रहे ने ते सानू सिखा रहे ने। कह लगे हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, बचपन ही है ते सानू सिखा रहे ने। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम कै सरों पे उठा चले। गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, सिंगों की सल्तनत का है पौधा लगा चले। गद्दी से ताजो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। कि आने वाले समय अंदर शायद इशारा बाबा बंदा सिंह बहादुर वाल होवे कि उसने इस सरहंद दियां इट नाल इट्टां खड़का देनियां हन। पर वो बचपन दे अंदर ही सिक्ख्या दे के अपना जन्म सफला कर दे। कोई सानू भी समझा गए राम जपो जी ऐसे ऐसे, ये भी तो बचपन ही है। 5 सालां दी भगतां दी आरजा, भगत प्रहलाद जी ते भगत रू जी 5 सालां दी आरजा। ते साहब ने यह नहीं कहा कि जो मैं कह रहा पहला मेरी गल मनो,
कह लगे नहीं राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। जिवें उन्हां भगतां ने कलेश अंदर झगड़े अंदर रह के भी जप लिया, तुसीं कहंदे हो झगड़े घर दे निबड़नगे फिर करते नूं चेते करांगे। सहब कहण लगी नहीं, घर दी उस चार दीवारी अंदर पे हुए कलेश दे विच भी बंदगी हो सकती है। गुरु अर्जन साहब जी ने इन्ना महान खजाना 30 रागां दे अंदर रच दिता ते उन्हां दा वड्डा भराता बाबा प्रिथिया जी नित झगड़ा पाई रखदा घर अंदर ते इन्नी बाणी साहब ने रच दिती। असीं ते एक पत्तर ही किसी नूं लिखना होवे ते कहने घर परिवार दा कोई मैंबर नेड़े ना आए, डिस्टर्ब ना करे, एक पत्तर लिखना ही औखा हो जाता है। पर गुरु अर्जन साहब जी उस घर दे पए हुए कलेश ओ झगड़े अंदर जिथे बाबा प्रिथिया नित नवे तो नवा पंगा खड़ा कर दिंदा है, सरकारे दरबारे जांदा है, कदी सुलही खान नूं लै आउंदा है, कदी सुलभी खान नूं लै आउंदा है। इथों तक गुरु अर्जन साहब तुहानूं तत्ती लोह तक भी जाना पैंदा है, पर फिर भी तुसीं तपे नहीं। इन्नी शीतलता तुहाडे कोल। खैर मैं बचपन की गल कर रहा सां, जे जवानी की गल करदे हां ते जवानी की गल वड्डे साहिबजादियां दी लै लईए। वैसे कई गुरु साहिबान ऐसे, जे गुरु अंगद साहब जी की आरजा का जिक्र करिए वह भी टोटल 48 साल। उस तो बाद जे किते गुरु तेग बहादुर साहब जी की आरजा की गल करिए तो यह भी कोई बहुती ज्यादा नहीं, 54 सालों की गुरु तेग बहादुर साहब जी की टोटल आरजा हुई है तो जवानी का समा कह लीए। खैर मैं साहिबजादियां दा उस जवानी का समा लै लवां जिथे चमकौर दे मैदाने जंग दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह रहे ने, शाबाश बिसर खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो बेटा, हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर बेट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, ले जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरसी तुम्हें खाते हुए देखें। वो जवानी अपनी भी सफली कर गए ते इस कौम नूं भी सिखा गए कि जे कोई धमकाए जे कोई डराए एवें ना डर जाओ। पै काहू को देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। ते जे बुढ़ापे की गल आई, समा नहीं खैर इसका विस्तार करिए, पर इशारा करदियां गुरु अमरदास पातशाह बुढ़ापे नूं सफलियां करदे हुए गुरु नानक साहब जी दे तीसरे स्वरूप बन बैंदे ने। इत्थे इन्नियां वड्डियां बख्शां रहमतां वापर जांदियां ने, जे समझ पै गई ते बचपन नूं संभाल लई, जे बचपन अंदर समझ नहीं पई जवानी नूं संभाल लई, जे जवानी अंदर समझ नहीं पई ते फिर बुढ़ापे नूं संभाल लई। जिंदगी दे किसे पड़ाव नूं समझा लई अपने आप नूं, गुरु तेरे उसे पड़ाव नूं सफलियां कर देगा। साहब जिक्र कर रहे ने, जे समझ जाएगा ते भला, नहीं ते बाल जवानी अर बिरद फन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। ये तिन्ने पड़ा चले जाएंगे। इस करके बहुतात चीज़ां ऐसियां हन जिन्हों आपां अगे पिछे कर सकते हैं। जन्म भी अजकल जिहड़ा है ये 2-4 दिन इंसान अगे पिछे कर लैंदा है, जे किते कोई होर घर दे काम ने उन्हां नूं भी थोड़ा बहुत अगे पिछे कर लैंदा है, पर जिस दिन मौत दा सुनिया आ गया इसने अगे पिछे नहीं होना। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान, किते गवा न लई करनो हुतो सो ना कियो, परियो लोभ कै फंद। साहब कह लगे करन वाला काम तू नहीं कर रहा, बस लोभ दे अंदर पिया होया, मैं तेनू रोकदा नहीं। सुचज्जी किरत कर, चंगी किरत कर, जिस दे नाल तेरे घर परिवार दे अंदर वध तो वध माया आवे, धन आवे। मैं तेरे धन अंदर रोक नहीं पाउनी चाहुंदा, तू दुनिया दे सारे सुख मान, पर कह लगे लोभ अंदर ग्रस के किते मिले समय नूं बर्बाद ना कर लई। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध, जिस दिन अखीरले सवासां ते पहुंच गया उस वक्त पछतावा रह जाना है।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।